मेरा एक एक्सेल बना हुआ था। उस एक्सेल में डेली के आवर्स क्लॉक होते थे, और नीचे उसको मैंने वीबीए मतलब लगा रखा था, वीबीए, कि अगर वो किसी भी दिन 10 घंटे से कम हो गया तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो रेड फ्लैग रेज कर देता था। लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शनल की सोशियोलॉजी क्यों लिया आपने? सर सोशियोलॉजी का तो बहुत फनी स्टोरी है सर। मेरे को हम्म। कुछ पता नहीं था कि सोशियोलॉजी कैसे क्यों लेना है, तो मैंने बताया ना सर, मेरा एक भाई जैसा ही है जिसने बोला कि भैया आ जाइए। फिर अब सोशियोलॉजी जब करने का बारी आया तो मैं बोला भाई मुझे भी करना है ऑप्शनल का। तो वो बोला कि भैया मैं ना सारा रिसर्च कर लिया हूँ। फिर भैया मुझे प्रणय सर का सबसे अच्छा लगा। थिंक बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कि मुझे जैसे मैं प्रिपरेशन स्टार्ट किया मुझे लगा सबसे पहले ऑप्शनल कर लेना चाहिए। तो मैंने तुरंत हम्म। 2023 जुलाई बैच लिया, आपका ऑनलाइन मोड में। वो मैंने पहले जी। खत्म कर दिया कि डांट के बोलिए आप, मैं बोलता हूँ दिल्ली नहीं जाना है। मैं मेरे को कोर्स जो जैसा लगता है, आप खुद ही देखिए ना, संडे यू आर अवेलेबल, यस। डाउट्स हमारे क्लास में सॉल्व हो जाते थे। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास के बीच में जैसे लोग डाउट पूछते हैं, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि एंड तक रुकते हैं। हम्म। जैसे वो 2.5 घंटे 3 घंटे जब आपका खत्म होता था, तो जो जी। आपके डाउट्स रहते थे उसके आपको क्योंकि इंस्टेंटली डाउट आते रहते डांटे रहते, बट मुझे पता रहता कि फिर आप कुछ प्लान करके आए हैं। जी। आप जब लेक्चर लेने आए हैं तो आपके दिमाग में भी है कि ये सब आएंगे, बिकॉज यू नो मच मोर देन अस। कि हम्म। सोशियोलॉजी अगर हटा दिया जाए हम्म। तो मेरे पास बाकी किसी जीएस के नोट्स नहीं है सर। गुड इवनिंग सर, हाउ आर यू? गुड गुड इवनिंग विशाल बेटे, कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ सर। आप हार्टीएस्ट कैसे? कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हाउ डज इट फील हैविंग योर नेम फाइनली इन द लिस्ट? Sir, it was a mixed feeling. First, on the first hand, I was very happy to find that one by one search. But then, हम्म। then थोड़े देर के लिए I saw the rank and I thought, oh, could have been better. कुड हैव बीन बेटर, या? Yes, and then I talked. Then after that, everyone else around my family was very happy. So for one day, I can say in one line, I was the least happy person in my home. अरे यार। And then I talked to people. Then I talked to my friends in service, my seniors, and then after talking to them, they made me realize the depth of the achievement. And then it took me a couple of days to हम्म। really sink in. And then now I'm like, okay, okay, it's good. Something has been done, and it's great. यस, एंड व्हाट सर्विस डू यू एक्सपेक्ट? Sir, I'll be expecting Indian Revenue Services as per the past year data trends on this. Which was So, what, like around fourth in your preference list? no, sir. So I didn't opt for foreign because I don't अच्छा। plan to go, and हाँ। it was a third. मतलब it was after IAS, IPS, it was IRS. You have lived in elsewhere, right? Germany or somewhere, or you were working with a I firm? wa- I had a couple of places, sir. I was there for a few months in Singapore and few months in this Middle East. अच्छा, And तो आपका while I मन भर was, गया। हाँ सर, बाहर तो नहीं जाना है, वो तो आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि मतलब टेम्परली इट्स गुड, बट देन इफ IFS as a service, for me I think I want to stay more closer to family and serve here itself. Yeah. So, what was the first thing that you did, like when you saw the result? Sir, I was sitting in a library actually, and हाँ। उसके बाद result, then I just came out and I called my parents. So my father was very happy, and then he हम्म। told me just to come back to home, and then हम्म। we went there, and then a lot of calls started flowing. Then we started, we prayed, we went to the temple the next day for taking हम्म। blessings, and then meeting people, talking to people, talking to relatives, friends. This is how Yes. went on for a few days. And do you intend to appear for the next one, the this year's? Sir, this year for sure I'll not attempt. I'll not go for sure. But if at all I want to, I'm thinking if I should give 2027 or not. अच्छा। So this year I'll not be doing, because as per my marks that is there, sir. So it is the interview that has, I'll say, saved me. So What did you call an interview? sir, my interview is 201, and Wonderful. this the mains is 770. अच्छा। So so again, I'll be, and my preparation has been in a bit in a hurry mode. So I always used to prepare for mains between pre and mains. I gave two attempts. So पहले बार Yeah. also I wrote mains but didn't get through. उसके बाद फिर I wrote mains. So I think if I'll give another attempt, I'll take some more time and Hmm. थोड़ा prepare करके, because then if I have to give this attempt, then I was thinking कि I have to start studying prelims. Yes. And वही again, if ट्रेडमिल पे भागते रहो।
Exactly, है so ना? that is what happening. So people are saying that there will be you have momentum, you should give, but I don't see the substantial increase in marks that I need. Maybe 50, Hmm. 60 marks to be on a safer side to get into the IS. So, Hmm. and I was also planning to get in touch with you regarding what is to be done in sociology. So I thought we'll let this settle down a bit. After a couple Hmm. of weeks, maybe I can get in touch with you and have your guidance on what more to be done. We'll definitely get to that. Yes, sir. And interview mein you got these 200 plus marks, which is great. So the credit goes to you or to the leniency of the interview board. How do you see it? No, sir. Actually, I Because you were very dapper and very, you know, slick when we had met for the mock interview, sir, right? yes, sir. And अभी that आप was मजनू लग रहे हो उससे तो बड़े. sir, that was my last. Matlab, I met you on 15th of January. I remember in the second half, and after that I closed. No further mocks because that was a wonderful conversation, and it really helped me boost my confidence. And I thought कि यहाँ पे अब रुक जाते हैं. And Hmm. then I just relaxed for the next few days. So the board was a bit, they were a bit serious, more serious than I expected, अच्छा. and it was intense. So there were हाँ. no follow-ups questions. All questions were one-liner. So I also did the maths in my mind कि 30 minutes का interview है. So maybe if the board asks you a question, they will take 10, 11 minutes at least or 12 minutes in for the questions. So you have to Hmm. speak for 17 minutes, 18 minutes odd. But Hmm. all the questions were one-liner, and अच्छा. they didn't ask anything from my DAF. अच्छा. So the chairperson, she took up the DAF. She was like, हाँ. "Okay, we're working. Nice, good job." Then the next thing she was like, "Okay, what is this financial engineering?" It was just Hmm. 30, 40 seconds. She kept the DAF on the table, and then she started. The first question was, "Do you know what is Islamic NATO? And should India be a part of NATO?" अच्छा. And वहां से it started, on a series of questions, and the questions were such कि it were all opinion based, everything related to current affairs across subjects: circular economy, de-dollarization, geopolitics, energy security, cricket diplomacy, advanced tech, drone warfare, Andaman Nicobar, my job at Schlumberger, हाँ. integrated energy policy बनाना है, mining related. And I didn't expect, I thought कि there should have been some questions in between जहाँ पे they ask, why did you choose this HR based question. That would have Yes. made the things a bit lighter. So it kept on हाँ. going, intense, all one-liner questions. Then they used to stop, listen, then another question. So it was a bit intense, and I was first to go in the second half अच्छा. to the panel. So that was also another thing. Everyone was a bit in a कि जल्दी जल्दी कराओ, जल्दी जल्दी you go and you go, Hmm. hurry. Then when I came out, my friends were there, and I told them at that time कि either it is 160, 170, or it's 200. मतलब Hmm. there is no in between कि 190 or 185 मिल जाए, ये नहीं हो रहा है. And Because you were left to do most of the talking during the yes, sir. interview. Yes. And Huh? yes, suppose for Hmm. example, there was one of the person, the members, she asked me a question that tell us about India's renewable energy targets. And हाँ. there are a lot of data points around it. So I just wanted to confirm ki, ma'am, I think by this you are referring to the Panchamrit targets that we had. And Hmm. ma'am was like, I don't know. You tell me whatever you think. I'm like, acha, okay. Then I was like, okay, I got it. Aisa, we have to do it this way. Then I told whatever I. But of course, you handled it very well. No, Yes, sir. I that's why kept on. I kept on you are in the smiling. list. So one good thing that I like to share with you is, so I belong to. I have stayed in the railway colonies. So this I belong to a very humble background. So while I was entering the UPSC premises, there was a sudden boost. The feeling ki whatever has been happening since over the years, and I was able to enter these premises based on the merit, based on hard work. And I बिल्कुल. don't know from where it came, but it was a wave of boost that came. And uske baad, I went inside, I was kept on smiling. Whatever I couldn't, they asked me a question from my subject, this mining, and I clearly told ki, sir, although I've studied the subject, but I don't know if I'll be able to answer in that much depth as you are expecting it from me. And he just Hmm. told, okay, then let's move on to something else. And so it Wonderful. was good. I tried to keep calm, tried to maintain eye contact, and whatever with utmost honesty I answered, and I think that went well. And in your mains, like which all portions have you done well, and which of them you have see significant scope of improvement?
Sir, I see scope of so regarding essay. One thing that is I'm really concerned about. I've given two attempts, two mains now, and my हम्म. essay marks are 95. अरे यार. वो हम्म. मतलब it is I don't know. मतलब this time I thought कि I wrote बहुत अच्छे से, and last time I thought I just went and I just wrote whatever in a very simplistic way. The second part is sociology. It went from 250 to 268 this time. So there also Which maybe is not bad. हाँ, but 15 नंबर का I think 10 marks may not ज्यादा, not to be more greedy, but 10 marks more can be achieved. That's it. But 268, I would say, is respectable. No, not Yes, sir. amongst the best, Yes, but it sir. is a respectable score. है So ना? this, yes, sir. This is just the essays there, वो है. And ethics also, I scored 113. But again, my हम्म. marks are like कि there is a scope of improvement on 10 marks 5-10 across. मार्क्स इधर उधर हर जगह अगर हो जाए तो. In all the हम्म. subject, I feel GS3 on हम्म. the contrary, last time I just went somehow to give the exam, I scored 88. That was way than higher than मतलब more higher than average जो कि 80 to 83 था. This time I made maps. I in the exam I wrote data points. I did everything हम्म. that I thought I could, and पेपर इजी होने के बावजूद लोगों के नंबर ज्यादा आए हैं और मेरे 5 नंबर कम हो गए हैं. अरे. तो मुझे समझ हम्म. ही नहीं आता फिर हाउ टू डील विद दिस. सो आई थिंक ऐसे विल बी वन पार्ट वेयर आई हैव टू फोकस, मतलब आई हैव टू रियली पुट इन लॉट ऑफ डेफिनेटली. एफर्ट्स. ऐसे में आप कम से कम 20-25 मार्क्स जी खींच सर, सकते जी हो. सर, वहां पे हम्म. वो हो जाएगा. और सोशियोलॉजी हम्म. तो मतलब वो अपने वो नोट्स हैं तो उस पे ही मुझे और आपसे जानना था कि और एडिशनली कैसे क्या करना है. बिकॉज हम्म. even last year also, sir, last year I actually in my first mains I was diagnosed with dengue between prelims and mains. So जी. वो ऐसे ही बस जाके मैंने दे दिया था. And just हम्म. based on that 4 notebooks that I prepared from this course, जस्ट हम्म. मैंने वो पढ़ा था, लेकिन वो आई हैव फुल कमांड ऑन कि आप कहीं से हम्म. मेरे से किसी पेज से कुछ भी पूछ लिए, मैं आई स्कोर 250. हम्म. सिर्फ वो 4 नोटबुक पढ़ के बिना कुछ टेस्ट दिए हुए कुछ किए हुए मैं गया और जाके वो हो गया. तो इस बार फिर थोड़ा और पढ़ा, ये किया, तो फिर मुझे लगा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट होगा तो और उस पर काम किया जाएगा. नहीं, I'm sure there are definitely things which we can, once we sit down to the यस सर, task, यस सर, there यस could be सर, possibly things we can figure out कि क्या कमी है. यस सर. You were mentioning your humble background. Just elaborate on that. मतलब कि what सर सो kind of माय a humble background you come from? Just so share. my father works for the Indian Railways. He is जी. head constable in the railway protection force. हम्म. And everyone else around my family also, okay, they are in the state, they are government services, but all on the lower rungs. So हम्म. like my uncle, he also works in the block. He in Bihar, in our district, and he's also posted as in the revenue department as in a clerk position. So they are very happy. मतलब मुझे नहीं लगता है कि इवन इफ आई गॉट अ सिंगल डिजिट रैंक, उनके खुशी में कोई जरा से भी चेंजेस आते हैं. दे जी. आर लाइक कि भाई हो गया है, बहुत अच्छा काम हुआ है, कोई हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी. नो बडी इवन सेड वंस कि ये हो जाता या वो हो जाता, कोई कुछ नहीं बोला. दे आर वेरी 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 हैप्पी. एंड Absolutely. दैट इज इतना व्हाट पूरे मेक्स. परिवार का उत्थान है. हाँ हम्म. सर, हाँ सर, वो लोग बहुत खुश है. मैं वही बोला, मुझे ही वो लोग वैसे देख रहे हैं कि भाई क्या हो गया, ऐसे क्या दिक्कत है कि आगे हम्म. जाओ. दे आर लाइक कि भाई सर्व इन योर ओन कैपेसिटी. मौका मतलब इट्स योर हार्ड वर्क दैट विल टेक यू थ्रू, बी इट इन एनी सर्विस. मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इफ यू गो इन आईएएस एंड यू डोंट वर्क देन यू विल कीप ऑन सक्सीडिंग, और यहाँ पे भी तुम काम करोगे तब भी यू वोंट डू वेल. सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू. सो टेक इट विथ दिस इन स्ट्राइड एंड वर्क हार्ड. दिस इज व्हाट दे आर सेइंग. ग्रोइंग अप कभी आपको ऐसे लगा कि बिहार से आप हो तो बैकवर्डनेस को डील करना पड़ रहा है, या इट इज मेकिंग इट मोर डिफिकल्ट फॉर यू टू क्लाइंब सर अप इन लाइफ? सर रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स तो थे. मतलब ये हम्म. मैं नहीं बोलूंगा कि बिकॉज वी माय फादर ही वाज इन द एनएफआर देयर. सो हम वेस्ट बंगाल, आई स्टेड लॉट ऑफ टाइम, हम्म. एंड देयर वर रिसोर्सेज कंस्ट्रेन. एक चीज जो मुझे लगता है जो सबसे बड़ा फैक्टर है सर, इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री का. हम्म. वहाँ इन्फॉर्मेशन ही आज भी मुझे फील होता है कि इन्फॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास. लाइक बताइए, वो भी इन टुडेज डे एंड एज. यस सर, आज के समय में भी कि क्या ऑप्शंस है, क्या किया जाए. सो लाइक हम्म. फॉर मी सर, my father was in the railways. He so train also, if you see this RPF personnel, so he used to escort this train. So वो he used to talk to youth like us कि जी. यार आई हैव अ सन, कि बताओ हमें क्या कराना है उसको, मतलब हमें क्या हाँ. करवाना क्या चाहिए. एंड वी हम्म. हैड 2 pieces ऑफ इंफॉर्मेशन टिल क्लास 10 कि एक आईआईटी होता है और एक आईआईएम होता है.
एंड द हम्म। सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन वाज कि आईआईटी पहले करना होता है और फिर आईएम बाद में करना होता है। ओ भाई बस जो। इस यहाँ से फिर वी स्टार्टेड, वी आई वेंट टू कोटा, वहां पे वी स्टडीड, आई स्टडीड, देन वेंट टू आईआईटी। फिर वहां हम्म। पे आई मेट अ लॉट ऑफ फोक्स, एंड वहां पे दैट वाज अ गेम चेंजर फॉर मी। आई स्टूड फॉर हम्म। इलेक्शंस, दैट हम्म। गेव मी अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। बात किया अपने आप, अपने वोकेबुलरी, कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करके, बिकॉज देयर पीपल हु आर मच मच बेटर देयर। देन आई वर्कड ऑल्सो फिर स्लम्बरजे पे एंड एवरीवेयर। सो ये सब मिला के ऑल दिस इज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट। सो वो यस। कंस्टेंट्स थे, बट फिर उसको वही है कि आई ऑलवेज आई हैड वन फीलिंग, अभी भी व्हाइल आई क्विट माय जॉब फॉर दिस, कि हम जहाँ मतलब फ्रॉम वेयर एवर आई हैव कम, गिरेंगे भी तो उससे ऊपर ही रहेंगे। मतलब दिस इज व्हाट आई बिल्कुल। हैव यस। अंडरस्टूड, कि उससे तो नीचे नहीं जा सकते हैं। तो लेते हैं रिस्क यार, क्या करें, दिस व्हाट And आई थिंक। given your family and all circumstances, I would say Schlumberger की very well paying job को छोड़ना भी would have been a no brainer ना, कि हाँ भैया सर, अगर सिविल सर सर्विसेज के लिए छोड़ना है तो छोड़ो, बेशक हाँ लाखों बट रुपया वहां आप कमा रहे हो। हाँ सर, हाँ सर, सो बट द थिंग इज माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव। हम्म। उनको दे वर लाइक कि हमारे, वी हैव नॉट सीन अ लॉट ऑफ मनी, इट्स परफेक्टली फाइन, बट यू टेक रिस्क। मतलब हम्म। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि तुम जाओ ना 2-3 साल करो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है, वो हो जाएगा तो हम्म। अच्छा है। मतलब एवरी द दिस ऑल्सो स्टेम्स फ्रॉम द फैक्ट कि everyone, my grandfather was also in the Assam police. So हाँ। my great my his elder brother, grandfather's elder brother also, he served in the army, and he was there posted, he lost his life in the Kargil war. So ओहो। फैमिली वैसी आ रही है कि करो ना, तुम करो फिर देखा जाता है। एंड रिगार्डिंग हम्म। दिस वेल पेइंग जॉब, आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय सीनियर्स from my college IIT Kharagpur. So he is currently deputed as deputy secretary in DOPT. सो ही हम्म। ऑल्सो टोल्ड मी द सेम थिंग कि भाई, तुम्हें स्लम्बरजे में जितना सैलरी मिल रहा था उससे कम मुझे अभी मिलता है। तो अगर हम्म। तुम पैसों के लिए तो फिर नहीं आए हो, तो डू वर्क हार्ड, लेट्स सी हाउ इट गोज। सो वैसे करके And बोल। परिवार में you would have surpassed everybody else, like सर across हाँ, generations, in terms of the हाँ service you are getting. डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। मतलब इवन आईआईटी वाज आल्सो सच अ, मतलब इट वाज अ माइलस्टोन फॉर माय, नॉट ओनली फॉर माय फैमिली। सो गांव में वैसी चीज है ना कि द एंटायर विलेज कम्स अप टुगेदर। सही बात है। सो वो पूरे गांव के लोग, मतलब वो वैसा हो जाता है, गांव हो गया, फिर प्रखंड हो गया, ब्लॉक हो गया, एवरी वन अराउंड में वहां पे दे आर हैप्पी कि ऐसा हुआ है कुछ। सो दिस थिंग आई ऑल्सो आई सॉ अ चेंज इन व्हेन आई क्रैक्ड आईआईटी जेई, कि उसके पहले हम्म। पीपल आर नॉट वेरी मच मच अवेयर कि लोग बच्चों को पढ़ाना है। दे यूज टू जस्ट सिट, टाइम पास कर रहे हैं, दोपहर को इधर बैठे हुए हैं, नदी किनारे बैठे हुए हैं। बट आफ्टर आई क्रैक्ड आईआईटी, पीपल स्टार्टेड सेंडिंग देयर किड्स टू कोटा, भेजना शुरू कर दिया, पटना हम्म। भेजना शुरू कर दिया पढ़ाने के लिए ना। पढ़ाने का वो बज एक स्टार्ट हो गया हमारे गांव में। हम्म। एंड सब ना अब लोग बात करते हैं कि पढ़ाना कैसे चाहिए, पढ़ाना, पढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट इवन गर्ल्स ऑल्सो, देयर ऑल्सो एनरोलमेंट, वो सब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया कि नहीं, लड़का लड़की कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो आई थिंक बहुत। दैट थिंग हैज बीन अगेन बीन री इन्फोर्स्ड, तो कि हाँ एक मतलब। सिलेक्शन से कैसे गांव का जी या सर, ब्लॉक में एक रवैया सा बदल जाता है, इंसान रोल मॉडल सा बन जाता है द जी लोकल। जी 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 हम्म। सर, जी सर, एकदम। ये तो चेंज मैंने देखा हुआ है कि लोग कैसे बदल, जैसे छठ पूजा में, एवरी छठ पूजा ट्राई टू गो टू माय विलेज, तो वहां पे आई हाँ। सी पीपल की, भाई तुम्हारा लड़का क्या करता है, तुम्हारी लड़की कहाँ पढ़ रही है, ये सब चर्चा है। मतलब मेरे चाचा लोग खुद बताते हैं, ये पहले नहीं होते थे ये सब बातें, कि हाँ क्या हो अच्छा। रहा है, क्या नहीं, क्या हो रहा है। इसके बाद तो फिर आई स्टिल नॉट गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गो टू माय विलेज, आई विल गो इन अ वीक। सो हम्म। उसके बाद आई थिंक ये दिस विल आल्सो एक्ट एज अ मोर बूस्ट फॉर नो अदर पीपल अराउंड। एंड विशाल, डू यू थिंक लाइक जो लोग रूरल बैकग्राउंड से आते हैं दे आर डिसएडवांटेज्ड इन दिस एग्जाम? सर आई थिंक ना एक विल पावर चाहिए, जैसे लाइक आई टेल यू माय स्टोरी। इवन यू द कोर्स दैट आई टुक फ्रॉम यू, मैंने ऑनलाइन मोड में लिया हुआ है। उसमें भी मैंने पढ़ा हुआ है। और मैं दिल्ली सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री और मेंस के लिए गया था। वो जी। भी बिकॉज कि मेरा एक भाई था, एंड ही वाज देयर, कैन ही वाज लाइक भैया आइए ना, पहला अटेम्प्ट साथ देंगे दोनों लोग मिलके एंड ऑल दिस। हम्म। सेकंड अटेम्प्ट सर आई गेव फ्रॉम मुंबई, हम्म। अकेले रूम में बैठे हुए। आई एम लकी टू हैव वेरी गुड फ्रेंड्स, वेरी प्रिविलेज्ड, लकी टू हैव गुड पीपल अराउंड मी। उनके साथ ही मैं रहता था, दे यूज्ड टू गो टू देयर जॉब, मैं यहाँ पे अकेले बैठ के अपना करता था, प्री मेंस सब यहीं से दिया है। एंड एवरीथिंग वाज ऑनलाइन मोड, अकेले बैठ के सेल्फ एनालिसिस करना। ऐसा कोई ग्रुप तो आपको मुंबई में मिलेगा नहीं, बिकॉज जी। मुंबई इज द लीस्ट थिंग, मुंबई इज नोन फॉर इज यूपीएससी। उसके अलावा यहाँ पे बॉलीवुड है, बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सो मुझे नहीं हम्म। लगता है कि वैसा कुछ टसल है। रिसोर्सेज वाइज टसल है, मुझे लगता है कि मे बी
यू नो दिस, जैसे मेरे पास लैपटॉप वगैरह ये सब का कोई मुझे इशू नहीं था, या स्टेबल इंटरनेट का ये सब कोई इशू नहीं था। हालांकि अभी चीजें हो रही है, जैसे मेरे गांव में भी, मेरे पंचायत में भी वो आ गया है वाईफाई इंस्टॉलेशन वगैरह। अच्छा। बट तो ये रिसोर्सेस वाले थोड़े इश्यूज हो सकते हैं। बट सब्जेक्ट वाइज, मटेरियल वाइज अभी तो उल्टा हो गया सर, इतने ज्यादा मटेरियल हो गया मार्केट में कि पहले सही आपको बात है। एकदम आपको नैरो डाउन करना पड़ेगा कि मैं, और हर पीडीएफ दूसरे पीडीएफ से अच्छा लगता है देखने में कि क्या सही बना बात है, है। क्या ही सुंदर बना दिया है इसको, इसको भी पढ़ हम्म। लेते हैं। सो अगर आपको थोड़ा वो लगता है अगर रिसोर्स। आप गांव में रह रहे होते तो क्रैक किए होते? सर एक्चुअली मेरा प्लान ही ये था कि आई वर्क फॉर 3 years, आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड आई स्टे कामली विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स इन माई विलेज। हम्म। सो वहां पे पूरी हम लोग, मतलब मेरा प्लान थे, सबको घर पे गांव में पता था, बट सैडली 2021 बोथ ऑफ देम पास्ड अवे। अरे। तो जी। इसीलिए, एंड गोरखपुर में करंट माय पेरेंट्स स्टे इन गोरखपुर, तो वहां पे फिर आई हैव नेवर स्टेड, सो मुझे वहां पे ना मेरे दोस्त है ना कुछ है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है वहां पे रहने में। सो हेंस आई हम्म। चोज टू स्टे इन मुंबई, कि एटलीस्ट देयर आर कपल ऑफ पीपल हियर, कभी भी कुछ होगा नॉन यूपीएससी रिलेटेड बातें भी होंगी। अदरवाइज मैं हम्म। इनिशियल इंटायर प्लान एंड सेटअप वाज टू बिल्ड माई वो, बना के डेस्क वेस्क सब ये रेडी करके वहीं पे गाँव पे पढ़ना है। कोई अच्छा। मेरा प्लान ही ये था, लेकिन वॉट एवर इट इज डेस्टिन्ड, अब वो वैसा नहीं हो पाया। भगवान उनकी भी आत्मा को शांति दे। आई एम श्योर दे आर आल्सो ब्लेसिंग यू। जी जी सर, वो दे वुड हैव बीन, तो लाइक आई वाज वेरी, उन सबसे ज्यादा क्लोज मैं उन्हीं लोगों से था अपने ग्रैंड हम्म। पेरेंट्स से, तो आज रहते तो फिर अलग ही बात होता, बट ऑब्वियसली देयर ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर विद मी। एब्सोल्युटली। ये बताओ कि आपको भी डिस्पाइट आईआईटी का बैकग्राउंड और एक अच्छा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस, कई साल तो लगी गए। हाँ सर, इट वाज तो माय सेकंड अटेम्प्ट, ये सेकंड अटेम्प्ट था मेरा, तो हाँ 2 year 10 months हो गए जॉब छोड़े हुए एग्जैक्टली। नहीं, आपने कितने टाइम पहले तैयारी शुरू की थी? सर 2024? 1 मई 2023 से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, 2024 मेरा पहला अटेम्प्ट था। 25, 26, 3 साल लगे, है ना? हाँ हाँ हाँ, 23 मान लीजिए आप, जून 2023 से, जून हम्म। 2023 से, और अभी तक 2026 तक, तो 3 साल अब हो जाएगा। 3 साल, 3 साल इज हाँ नॉट टू मच ऑफ टाइम। 2 साल तो मान के चलिए बेयर मिनिमम है ही है क्रैक हाँ सर, करने के हाँ, लिए, दैट है दैट ना? एक आई साल एम, आपको एक्स्ट्रा लगा। हाँ आई एम वेरी लकी, मतलब आई थिंक, डेफिनेटली सर। अपार्ट फ्रॉम लाइक द फैक्ट दैट यू फेल इल, हम्म। कोई प्रिपरेशन में गलतियां रही थी फर्स्ट टाइम अराउंड? नहीं सर, मुझे लगता है कि ये बिकॉज माय फर्स्ट टाइम का मार्क्स जो था सर, वो भी हम्म। 720 था, अरे। एंड हम्म। द इंटरव्यू का कट ऑफ वाज 729। हम्म। एंड वो आप सोच लीजिए कि एक मैंने दैट टाइम ऑल्सो, इफ यू रिमेम्बर दैट सैड इंसिडेंट ऑफ वो ड्राउनिंग ऑफ आवर फेलो स्टूडेंट्स हैपेंड, सो सारे करेक्ट। लाइब्रेरीज बंद हो गए, रूम यस। वेल उतने वेल इक्विप्ड नहीं थे, तो इट वाज अ वेरी बैड फेज ऑफ दोस 2 months। सो यस। आई थिंक आई कुड हैव डन इट देयर ऑल्सो, उस समय भी ये चीज हो सकता था। एंड हम्म। स्ट्रैटेजी वाइज आई डोंट थिंक, बिकॉज आई स्टार्टेड विथ कि मुझे, जैसे मैंने जॉब सॉरी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, मुझे लगा सबसे पहले ऑप्शनल कर लेना चाहिए, तो मैंने तुरंत हम्म। 2023 जुलाई बैच लिया, आपका ऑनलाइन मोड में, वो मैंने पहले जी। खत्म कर दिया। वहां पे हाँ मुझे ये जरूर लगा सर कि थोड़ा स्ट्रैटेजिकली ना, मुझे लगा कि एक साल में मैं ये करके, आई प्लान इट इन आइडल वे, कि एक साल में पढ़ाई कर लूंगा, एंड अगले साल अटेम्प्ट देंगे, फिर जी। प्री और मेंस के बीच में आंसर लिख लेंगे। हम्म। वो मुझे लगता है कि मुझे जून की जगह 3 महीने पहले, 4 महीने पहले और शुरू कर देना चाहिए था, ताकि मैं नवंबर दिसंबर में थोड़े मेंस की आंसर राइटिंग हो जाती, तो फिर मेरे हम्म। को लगता है कि फर्स्ट अटेम्प्ट एकदम बढ़िया सील हो जाता, तो वो मुझे एक थोड़ा प्लानिंग में वो लगता है। बट उसके अलावा आई थिंक, मतलब मैंने बहुत ही अपने सोर्सेज को वैसे नहीं किया है कि एक ही जगह से करना है प्रीलिम्स के लिए भी। जैसे मैपिंग का एक सोर्स है, वो फिक्स्ड है, वो दैट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ज्योग्राफी का एक सोर्स। सो मैंने हम्म। एकदम हर सोर्स के लिए कस्टमाइज्ड वो बना रखा है अपना, कि ये यहीं से करूंगा, ये यहीं से करूंगा, और ये ऐसे होगा बस। तो उसमें विशाल बेटे फोमो सा नहीं होता था कि यार वो भी अच्छी किताब है, वो भी अच्छा इंस्टीट्यूट मटेरियल प्रोड्यूस कर रहा है, उसके भी पॉपुलर हैं, बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरा रह गया तो क्या? नहीं सर, ये होता था मुझे जब मैं मुंबई में था, बस फिर जब मैं प्रीलिम्स के पहले जब मैं दिल्ली गया, और फिर मैं देखा कि यहाँ पे भी, मतलब आई वेरी ऑनेस्ट कि मतलब 60%, हाफ ऑफ द पीपल आर नॉट वेरी सीरियस। करेक्ट। तो वो फिर मोर मुझे देन लगा हाफ कि आई वुड से। हम्म। हाँ यस, मोर देन हाफ, बट फॉर अ हम्म। कंजर्वेटिव परसेंटेज आई वाज जस्ट टेलिंग इट। सो हम्म। वो मुझे बहुत बूस्ट दिया, कि भाई इससे हम्म। ज्यादा तो मैं वहां पे अकेले घर पे बैठ के 10 आवर्स में डेली क्लॉक कर लेता था। यहाँ हम्म। पे मेरे पास सब चीज के लॉजिस्टिकल इश्यूज है, फॉर एवरीथिंग आई एम डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड पार्टी, बीट हम्म। फूड, माई क्लोथ्स, कुछ भी खरीदना है मेरे को, कुछ ये लेना पड़ रहा है, तो वो हम्म। बीच बीच में मुझे वो होता था। बट एक बार जब दिल्ली से फिर मैं आ गया वापस, सेकंड अटेम्प्ट में मुझे कभी कोई फोमो फील नहीं हुआ, कि नहीं, उसके बाद मैं देख के आ गया दिल्ली, और कोई ये बात नहीं, ऑनलाइन मोड में शांति से अपना करते रहा मैं फिर।
आपने दोनों मोड्स में पढ़ा है, जैसे मतलब कि दिल्ली में रह के भी पढ़ा है और दिल्ली से बाहर भी पढ़ा है, राइट? हम्म। वुड यू से वन ऑफ देम इज बेटर देन द अदर और सुपीरियर टू अदर एज अ मोड ऑफ प्रिपरेशन? सर जो मेरे जैसे ऑन दिस मेरे जो बहुत क्लोज जूनियर्स हैं या मेरे जो क्लोज लोग हैं, जो मैंने हाँ, वर दे आस्क कि कहाँ जाना चाहिए क्या करना चाहिए, जो बहुत क्लोज है उनको मैं स्ट्रिक्टली डांट के बोलिए आप, मैं बोलता हूँ दिल्ली नहीं जाना है। मतलब मैं नहीं उनको ऐसा जाना है। बोलता हूँ, हाँ मैं उनको एकदम बोलता हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही वैसा एक्सपीरियंस था। आपको फूड के प्रॉब्लम, हाइजीन इश्यूज थे बहुत वैसा। तब मतलब प्रॉब्लम इज, इवन इफ यू वांट टू पे अ प्रीमियम, हम्म। आपको वो एडिशनल वो कुछ अच्छी हाइजीनिक चीजें नहीं मिल रही है वहां पे। सही बात है, घर का तो खाना कहीं हाँ नहीं मिल सकता आपको। एग्जैक्टली सर। और फिर लोग बोलते हैं कि मैं, मतलब मेरा जो व्यू है कि लोग बोलते हैं कि घर पे रह के या कहीं और रह के वहां पे कुछ डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं बस इसको वैसे रिलेट करता हूँ कि 2-3 घंटे तो आपको दिल्ली में भी जा ही रहे हैं, मेस में खाने में, बाहर चाय बिल्कुल। पीने में, भाई ये करने में, तो हो सकता है 1 घंटे घर का ही काम करना पड़ जाए, तो क्या दिक्कत है। अल्टीमेट सही आइडिया बात इज है। टू 10 आवर्स वो क्लॉक करने का। सो मैं तो फिर, हम्म। और मुझे ऑनलाइन वूड सर मैं शुरू से ही सोचा था कि करूंगा, और मुझे उसमें बहुत कॉन्फिडेंट था कि इसी से करना है। मतलब वहां जाके वो मुझे उतना नॉट वेरी बिग फैन ऑफ क्लासरूम, और थोड़ा वो भी लगता है ना कि सर अब थोड़ा जॉब कर लिए, मतलब तो वो हो गया, तो फिर जाके वापस क्लास में बैठना वो भी थोड़ा एक वैसा था कि मेस के लाइन में लगना। वहां पे बच्चे, हाँ। मतलब देयर आर लिटरली किड्स हु आर 18-19 ईयर ओल्ड, जो कि अब यस। कॉलेज के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड देन यू आर 25-26 एंड आप वहां पे फिर वो भी थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं भाई, अकेले ही करते हैं थोड़ा। तो यू तो क्लियरली वोट फॉर ऑनलाइन प्रिपरेशन, अब या आई एम सर, घर पे बिकॉज रह सर, के रादर देन शिफ्टिंग टू टेस्ट? सर उसमें भी कोई इशू नहीं है। जैसे अब आपका, मैं मेरे को कोर्स जो जैसा लगता है, आप खुद ही देखिए ना, संडे यू आर अवेलेबल, यस। डाउट्स हमारे क्लास में सॉल्व हो जाते थे। और जी। मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लास के बीच में जैसे लोग डाउट पूछते हैं, तो मैं हमेशा यही सोचता था कि एंड तक रुकते हैं। हम्म। जैसे अब वो 2.5 घंटे 3 घंटे जब आपका खत्म होता था, तो जो जी। आपके डाउट्स रहते थे उसके आपको, क्योंकि इंस्टेंटली डाउट आते रहते डांटे रहते, बट मुझे पता रहता कि फिर आप कुछ प्लान करके आए हैं। जी। आप जब लेक्चर लेने आए हैं तो आपके दिमाग में भी है कि ये सब आएंगे, बिकॉज यू नो मच मोर देन अस। हम, मैं पहली बार सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ या छू रहा हूँ, तो फिर मैं उसको छोड़ देता था कि एंड तक जाते हैं। क्लास के खत्म होते होते एक दो चीज हार्डली कभी रह जाता था, उसमें हम्म। कोई वैसा दिक्कत नहीं। और संडे को, मतलब एक जब आप कॉल पे आपका टाइम वो दिया ही हुआ था, तो जी। उसके भी कोई इश्यूज थे नहीं, रिसोर्सेज के कॉपी चेक करने हम्म। का भी कोई दिक्कत नहीं था। ऑनलाइन आप अपलोड कर दो टाइमली, जो भी आप वीकली लेते थे असाइनमेंट्स, जो भी एफएलटीज दिया था मैंने वहां पे, तो मुझे वैसा कोई, मतलब वो फील नहीं हुआ, मतलब फ्रिक्शन, मेरे स्मूथ था प्रोसेस उस चीज के लिए। विशाल बेटे, व्हाट वुड यू से इज द बिगेस्ट मिथ सराउंडिंग दिस एग्जाम प्रिपरेशन, जो शायद किसी स्टेज पे आपने भी सब्सक्राइब टू किया हो बट बाद में रियलाइज हुआ हो कि यार ये तो सही नहीं है? सर मुझे ना अभी वही लगता है, जैसे मैं वॉज वेरी मेंटली रेडी कि जैसे मेरे पास ना अभी कुछ वो नहीं है। आप मेरे से अगर आप पूछ लो कि हम्म। सोशियोलॉजी अगर हटा दिया जाए, हम्म। तो मेरे पास बाकी किसी जीएस के नोट्स नहीं है सर। कि अच्छा आप जी। अगर, मैं, हाँ मेरे पास, कि आप मेरे को बोलिएगा कि नोट्स दे दो, वन पेजर दिखा दो, मेरे अब मेरे साथ वाले लोग मेरे से मांग रहे हैं, हाँ। अब उनको लग रहा है कि आई एम बोस्टिंग। भाई मेरे हाँ। पास नहीं है नोट्स, मतलब मैंने कुछ कुछ जो आपको बताया सोर्सेज फिक्स किए हुए थे, मैं हाँ। उसी को फिर वो कर देता था, पढ़ा, दैट्स इट। और मैं कंटेंट, और दूसरा चीज मेरे को ये है कि मैं कंटेंट बिल्डिंग पे ज्यादा फोकस करता था। जैसे मैंने, आप ये भी सुन के आई आई थिंक आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि मैंने सोशियोलॉजी तो ठीक है, जो आपको दो एफएलटीज थे हमारे वो थे, एंड जीएस के लिए मैंने सिर्फ, पिछले साल तो कुछ दिया, कुछ नहीं दिया, इस साल सिर्फ एक अभ्यास दिया था मैंने, एक एक एफएलटी। उसके अलावा मैंने कुछ फुल लेंथ लिखा ही नहीं है। अच्छा, एंड दिस और वाज इन मैं, बोथ योर मेंस, यस दोनों बोथ के से बोथ पहले? सर, मेंस 2024 तो वाज माय फर्स्ट एफएलटी, आप ये सोच लीजिए। ठीक है, तो जो भी इसको बच्चे सुनेंगे मैं तो उनको एक कैविएट इंट्रोड्यूस कर दूंगा कि ये ना फॉलो करें, वेरी फ्रैंकली। एग्जैक्टली सर, तो मेरे इसी, से वेगनसली लिखना और लिखने की अच्छी खासी प्रैक्टिस होना ना बहुत आवश्यक है। ठीक सर है, यू इसी, मे हैव सम इनेट टैलेंट या स्किल परहैप्स। हाँ। सर एक्चुअली ना ये भी मेरा एक वही प्रॉब्लम है कि मुझे सबसे ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंस मैं लिखने पे ही था, बिकॉज आई नो दैट आई एम हम्म। नॉट वेरी गुड एट राइटिंग। यू आस्क मी टू टॉक ऑन थिंग्स, यू आस्क मी टू हैव सम डिस्कशंस, आई विल डू इट, कभी भी आप मुझे बुलाइए मैं कर हम्म। लूंगा। लिखना इज माय वीक पॉइंट। तो जब वैसा हालत के बाद फर्स्ट वाले में आ गया 720 मार्क्स, तब मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला, एंड तब मुझे लगा हम्म। कि हाँ अगला अटेम्प्ट दिया जा सकता है। और इसीलिए जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि 26 तो मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा हूँ कि अब ना थोड़ा मेंस के पीवाई क्यूज और टेस्ट सीरीज
अब जो दो चीजें बच गई हैं इस मेजर प्रिपरेशन में, ये मैं करके दूंगा अगला अटेम्प्ट, ताकि लाइफ में कभी वो ना रहे कि भाई ये नहीं फॉलो किया नहीं गया। तो अगर आपके 720 के करीब 2 बार आए हैं विदाउट मच आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ना, यस सर। आप विद प्रैक्टिस करोगे, आप नियर सर्टन है यू शुड गेट इनटू आईएएस। हाँ सर, तो इसीलिए मैं उस हिसाब से भी अब मैं अपना कस्टमाइज जो मेरा पाथ है मैं वही, इसलिए मैं 2026 के लिए नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे साथ वही होगा सर। मैं फिर प्रीलिम्स दूंगा और अगर वो क्लियर हम्म होता है, सबसे बड़ा तो हर्डल वो है, तो उसके बाद फिर 2 महीना मेरे पास लगे बचेगा, और फिर मैं वैसे ही प्रिपरेशन करूंगा जो कि मैंने लास्ट 2 साल से किया हुआ है, और फिर कोई डेल्टा का चांसेस नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ अभी 4-5 महीने फाउंडेशन कोर्स जाने से पहले आपसे बात कर लूंगा, या जीएस में और भी जो मेरे ये लोग हैं उनसे बात करके थोड़ा अपना सॉर्ट कर लेंगे क्या एडिशनल करना है, आराम से हम्म, पढ़ेंगे, फिर फाउंडेशन कोर्स जाके फिर यूएल लेके अगर देना है तो देंगे। तो ऐसा ठीक है। सर्विस आर जैसे सर, और भी एक बात है कि आईआरएस के बारे में मुझे उतना आइडिया नहीं था, तो हम्म। जानने के बाद अब मुझे लग रहा है कि विच नहीं सर। आईआरएस? सर इंडियन रेवेन्यू सर्विस। नहीं नहीं, विच? आईटी या? बस किसी के बारे में मतलब डिटेल्ड में हम्म। आइडिया कहाँ ही रहता है कि सर काम एक्चुअली में क्या है, करियर प्रोग्रेशन क्या है, वो तो सिर्फ जी। मतलब गूगल करने पे भी उतना पता नहीं चल पाता है। तो फिर मैंने हम्म अपने सीनियर्स से, बैचमेट्स जो है मेरे आईआरएस में, उन लोगों से बात किया, तो आई एम वेरी, हम्म मतलब बहुत ज्यादा आई एम सेटिस्फाइड कि ऐसा हम्म नहीं है कि, बिकॉज सर आईपीएस आई टोल्ड यू ना एवरीवन इज इन पुलिस, सो हम्म आईपीएस आई एम नॉट अ वेरी बिग फैन ऑफ, कि अगर मुझे मिलेगा वापस तो मतलब 10 नंबर ज्यादा मिल गया अगले साल और आईपीएस में बन गया, दैट विल बी इक्वली सेटिस्फाइंग एंड हैप्पी जो मैं अभी हूँ। तो हम्म। वो मैं बहुत ज्यादा, जैसे मेरे दादाजी तो बहुत क्लियर कट बोलते थे कि कभी भी ये एग्जाम देना भी अगर जिंदगी में, कभी भी आईपीएस ऑप्ट मत करना, क्योंकि अच्छा जी। हम, हाँ क्योंकि हमने वो देख, ही वर्क फॉर 40 इयर्स, मैं आपको बताया, व्हाइल ही वाज रिटायरिंग ही वाज विद इन द चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी, पे वो थे, आसाम के चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी के साथ काम करते थे हम्म। उनके लिए। तो वो बहुत क्लियरली बोलते थे कि कभी भी आईपीएस तुम मत लेना, लोग चाहे जो भी बोलेंगे तुमको, मैं तुमको ये बात बोल रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं तो सोच रहा हूँ दादाजी थोड़ा। की बात आपके दिमाग में बैठी हुई है थोड़ी है। हाँ सर, वो तो है सर, जी सर। हम्म। विशाल, आपको लगता है ये सारा जो यूपीएससी प्रिपरेशन का तरीका है बहुत टॉक्सिक सा हो गया है? सर बॉम्बार्डमेंट बहुत ज्यादा है, हम्म टॉक्सिक तो है, मतलब आप एकदम, इतना ज्यादा डेटा कंजम्पशन है, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन, जैसे ही अभी जैसे प्रीलिम स्टार्ट होता है ना सर, मैं ये सब कुछ यूट्यूब यूट्यूब टेलीग्राम सब वो कर देता हूँ साइड, क्योंकि मैं अपना जो अच्छा। मेरे 5 किताबें हैं, मैंने जो अपने फुल लेंथ टेस्ट देने के सोच रखे हैं, जब जब मैंने अपना शेड्यूल बनाया हुआ है, जब मैं पीवाईक्यूज करूंगा प्रीलिम्स के लिए, मैं अपना फॉलो करता हूँ, क्योंकि ये जो हम्म एक बार नवंबर से ये जो स्टार्ट होता है ना सर, होड़ एकदम वहां पे, हम्म कि अब आ गया प्रीलिम्स, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो मुझसे मुझे बहुत डर लगता है सर, कि आप एकदम अननेसेसरी उसमें फ्लो कर जाते हैं, तो थोड़ा हम्म वो तो है। बट अगर मुझे ये भी लगता है, मैं बार बार लोगों को बोलता हूँ, अपने दोस्तों को भी बोलता हूँ जो कॉर्पोरेट्स में है या जो फॉरेन एमबीए करने गए हुए हैं, कि हम्म मेरा हो या ना हो इस एग्जाम में, लेकिन जिस इंसान ने भी या जिस कमिटी ने ये सिलेबस डिजाइन किया है, इट इज हम्म एक्सीलेंट सर, इट इज एक्सीलेंट, मतलब आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस सिलेबस, इवन द हम्म। वे द एग्जाम इज कंडक्टेड, मतलब लोग बोलते हैं इतना इतना टाइम लग जाएगा, ठीक है, बिकॉज द पोजीशन इज सच क्रूशियल, कि करेक्ट। आप जहां पे जा रहे हैं, मतलब इवन एनी सिग्नेचर, एनी वन हु इज इन दिस पोजीशन, उसके सिग्नेचर विल आल्सो कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। तो आपका हम्म प्रीलिम्स में जज किया, मेंस में आपको लिखने का जज किया। अब लोग बहुत सारे बोलते हैं कि आज के जमाने में सब्जेक्टिव लिखने का क्या दिक्कत जरूरी है, सर हम्म है उसका, मतलब आप वो जो 50 पेज लिखते हो 3 घंटे में, आपका थिंकिंग एबिलिटी कैसे क्या नहीं है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है पेपर पे, एंड फिर हम्म। पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो है, मतलब मुझे बहुत, आई एम अ बिग फैन ऑफ दिस सिलेबस एंड द वे दिस एंटायर थिंग इज डिजाइंड। इवन अगर मेरा नहीं होता तो मैं पहले ही बोलता था, आगे भी ये चीज बोलूंगा। Interesting, huh? Because a lot of people are critical, including those who get selected. हम्म। They find the whole, they find it obsolete, if nothing else. है कि आउटडेटेड है और आज के जमाने में रट्टा बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट है, न्यूमरस व्यू पॉइंट्स आर देयर, हम्म। बट हम्म। यू आर एंटाइटल्ड टू योर्स डेफिनेटली। हम्म। विशाल, ये बताओ कि डेली आपका जो रूटीन होता था कितने घंटे डिवोट करते सर थे मेरा ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस? सर मैं इसमें मतलब आई वाज वेरी वो डिसिप्लिन, मैं पढ़ता था डेली, मतलब मेरा वैसा नहीं होता कि 2 महीने बाद मैंने छोड़ दिया, आई वॉज लाइक फुल्ली, मेरा एक एक्सेल बना हुआ था, उस एक्सेल में डेली के आवर्स क्लॉक होते थे, और नीचे उसको मैंने वीबीए मतलब लगा रखा था, वीबीए, कि अगर वो किसी भी दिन 10 घंटे से कम हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली वहां पे वो रेड फ्लैग रेज कर देता था नीचे के रो में, कि अच्छा। नॉट, सपोज लाइक नॉट गुड फॉर टुडे, इस टाइप हम्म करके मैं अलग अलग कमेंट्स दे रखे थे उस एक्सेल में, तो ये मैं डेली फिल करता था।
तो कंसिस्टेंसी वाइज आई यूज टू आई माई टारगेट वाज थी 9 से 10 घंटे हो जाने चाहिए, 8 से 10, बिकॉज मेरा वही था कि एक साल में मुझे खत्म कर देना है पूरा सिलेबस। तो मैंने हम्म। स्टार्ट भी किया था एक ही साल को लेके उस हिसाब से। एंड दिस इंक्लूड एवरीथिंग, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह, इससे कुछ एडिशनल नहीं, ये 10 घंटे पढ़ाई के हैं तो हैं। और मेरे को पता था कि क्योंकि एफिशिएंसी 100% नहीं होती है, तो अगर यस। मुझे 9 घंटे पढ़ने हैं तो मैं 11 घंटे बैठता था चेयर पे। ओहो। ताकि मुझे पता है कि वो एफिशिएंसी तो ऑब्वियसली 11 के 11 कभी नहीं होगा सर, कभी कभी दिमाग इधर करेक्ट। सोचता था कुछ, तो मेरा वैसा भी होता था कि कभी कुछ दिमाग में आ रहा है तो मैं किताब बंद करके सोच ही लेता था उस चीज को। कि खत्म करो। हाँ, कि इसको सोच लो, सपोज सब कभी यही आता था सर, कभी कोई थॉट्स 100% आता था कि अपने बगल आप जिनके साथ रहते थे वो भी जॉब कर रहे हैं, उनकी सैलरी आपके बैचमेट्स हैं वो बढ़ ही जा रहा है, और आप वहां जी। आपके आपके क्रेडिट से आई सेव्ड माय ओन मनी, आई एवरीथिंग वाज फंडेड बाय माय सेविंग्स ओनली। सो मेरा सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव रेड 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 मेरा क्रेडिट से दिखते जाता था, एंड यू हैव टू टेक केयर। हाँ। सो बहुत सारी उससे फीलिंग्स आती थी। बट मैं यही सोचता था कि 11 घंटे कुछ भी हो जाए मुझे बैठ जाना है, कि बैठना ही है, मैं बैठूंगा, कभी 10 घंटे बैठ लेता था, कभी 11 घंटे बैठ लेता था, ताकि 8 घंटे 9 घंटे का इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाए, मतलब 85% एफिशिएंसी, 90% एफिशिएंसी मान लीजिए, वैसा करके। और तो और सब 3 साल में कितनी छुट्टी ली होगी आप? कितने दिन छुट्टी ली होगी पढ़ाई से? सर पहला साल तो मैंने नहीं, मतलब मान लीजिए आप, सिर्फ जो मैं ट्रैवल किया था दिल्ली, घर और तो गया ही नहीं था, मैं यहीं पे था, हम्म। कोई दिवाली होली ये सब कुछ नहीं, छठ पूजा वगैरह कुछ नहीं मनाया था। और पहला मेंस देने के बाद भी मुझे पता था कि होगा नहीं, तो मैंने सिर्फ हम्म। 3 दिन बाद वापस मैंने मेंस का पढ़ाई स्टार्ट कर दिया था। सेकंड वाले में फिर मेरे को मैंने थोड़ा लिया है बीच में, संडे वनडे या होली के समय मैंने वो ले लिया था, थोड़ा अपने सेल्फ डिक्लेयर्ड ब्रेक ले लिया था। दिवाली में हम्म। आज कुकिंग वुकिंग कर ली, ऐसा कर लिया था, तो ऐसा करके कर लिया था। तो ऑन एवरेज मैं कंसिस्टेंसी वाइज आई वाज लाइक कि मैं पढ़ता था सर डेली, मैं ये नहीं, मैं मंथ में आप मान लीजिए 28 डेज 29 डेज फॉर श्योर मैं पढ़ता था 20। और मतलब मेरा वैसा था कि अगर मान लीजिए मुझे अगले मंथ 2 दिन वेस्ट करना है, तो मैं पिछले, मैं उसको खुद से वो करता था कि मैंने अच्छा। वो करना है 2 दिन का छुट्टी, तो मैं ऐसा नहीं करूंगा कि 2 दिन में 10, मान लीजिए जैसे 8 8 घंटे 16 घंटे होते हैं, तो मैं एक महीने पहले से आधे आधे घंटे पढ़ाऊंगा डेली, ओहो। ताकि मुझे वो साइकोलॉजिकली लगे कि हाँ मैंने अचीव किया है वो 2 दिन की छुट्टी। तो ये छोटे वंडरफुल। छोटे अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को चैलेंज रखने के लिए मैं करता था अकेले बैठे बैठे, तो उस हिसाब से ये चीजें मैं करता था सर। व्हाट वाज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन फॉर यू? सर ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं था, टू वेरी ऑनेस्ट, आई वाज वेरी फोकस्ड। मतलब मेरे साथ वंडरफुल। लोग जॉब भी करते थे, वेरी लकी टू हैव देम बाय माय साइड, कि कोई मुझे लॉजिस्टिक्स का इश्यूज नहीं होता था। देखो उसका दिक्कत है, अपना पढ़ता था शाम को, मतलब एवरीथिंग वाज फिक्स्ड। कुछ भी हो जाए, भूख लगे ना लगे, 9:30 बजे मुझे ब्रेकफास्ट करना ही है, 1 बजे लंच करना ही है, 9 बजे अच्छा। डिनर करना ही है। मतलब मुझे वो, मैं वो नहीं सोचता था कि मुझे आज क्या खाना है, भूख लग रहा है या नहीं लग रहा है, वो एक टास्क है, उस टास्क हम्म। को करके खत्म करना है बस। इतना ही था मेरे लिए वो, उस चीज को। तो ऐसा सर ऐसा कोई डिस्ट्रैक्शन तो नहीं रहा है। हाँ, उसके बाद सर थोड़ा इंटरव्यू वाले प्रिपरेशन फेज में थोड़ा, ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्शन नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा डैफ बनाते समय, ये करते समय टाइम लग जाता है थोड़ा, आप कैसे करते हैं दैट जैसे इज अ मॉक पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, प्रिपरेशन। एग्जैक्टली सर, तो वो उसको तो फिर मैं नहीं बोलूंगा कि वो टाइम वेस्ट, कैसे ही बोल सकते हैं फिर उसको। एंड यू वर कंप्लीटली ऑफ सोशल मीडिया? शत सर मैं प्रतिशत व्हाट्सएप बंद, टेलीग्राम चलाता था सर मैं, एंड उसमें होता था, एंड फेसबुक, इंस्टाग्राम आई डिलीटेड लॉन्ग टाइम एगो, फेसबुक हाँ। ऑल्सो अभी भी ऑल्सो एम नॉट एक्सेस टू। व्हाट्सएप मैंने अभी 1 महीने इंटरव्यू के समय, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स व्हाट्सएप बनना शुरू करते थे, तब मैंने हाँ। व्हाट्सएप स्टार्ट किया था। तो उसके पहले मेरे पास व्हाट्सएप था, बट पहली बार जब मीन्स नहीं हुआ ना सर, उसकी हाँ। उसके बाद आई अनइंस्टॉल्ड। बट इट नेवर डिस्ट्रैक्टेड मी, मतलब ऐसा सच नहीं आता था, आई वॉज टोटली अंडरग्राउंड। मैं अपने केजीपी, स्पेशली मैं कॉलेज फोक से मैं उतना बात नहीं करता था, बिकॉज वहां की हम्म। डिस्कशंस वैसी होती थी कि कोई एमबीए जा रहा कॉर्पोरेट है, वर्ल्ड की। हाँ कोई स्टार्टअप कर रहा है, किसी का कितना हम्म। पे रेज हुआ। तो वो मैंने हम्म। कॉशियसली बंद कर दिया था वो चैनल, कि वहां से मेरे हम्म। को नहीं बात करना है, तो मैं आई वॉज टोटली अंडरग्राउंड। मेरे को 0 कॉल्स आते थे दिन में, ऐसा था चल रहा है बस, अपने आप टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने साथ, बैठे हुए हैं, कॉल्स नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, एकदम वैसा था। तो वो सोशल मीडिया वाज नॉट अ डिस्ट्रैक्शन, बट यही था टेलीग्राम और वगैरह ये चलाता था सर, टेलीग्राम वाज मेन थिंग। कोई ऐसा फेज आया प्रिपरेशन में जब लगा कि डिप्रेशन सा महसूस हो रहा है, या मेंटली अनहेल्दी अनफिट आप फील कर रहे हो? नहीं सर, मतलब नॉट नॉट टू टू ऐसा कभी नहीं फेस हुआ मुझे। मतलब आई हैड ग्रेट। आई, मैं जैसे बार बार मैं इसी चीज में एम्फसाइज करता हूँ कि आई हैव लॉट ऑफ पीपल, आई एम वेरी प्रिविलेज्ड इन दिस थिंग, कि मतलब जो पीपल वाली चीज है, आई हैव लॉट ऑफ पीपल टू टॉक अप,
किसी भी लोगों को कॉल लगा दो, बी इट इन एनी सर्विस अक्रॉस स्ट्रेटा, आई हम्म हैव सर्विस बोलो, अब जॉब बोलो, अक्रॉस नेशंस, आई हैव ड्यू टू माय वेरिड इधर उधर के एक्सपोजर से, सो दे एंड हम्म दे विल पिक अप माय कॉल, मतलब कभी भी कॉल कर रहे हैं, इवन प्रोफेसर्स फॉर माय कॉलेज, द डायरेक्टर ऑफ हम्म, आवर इंस्टीट्यूट, आई एम हैव वेरी गुड कॉर्डियल रिलेशंस विद हिम, उनको भी मैं कभी वंडरफुल। कॉल कर दूं तो ही विल पिक अप एंड ही विल लाइक रिस्पॉन्ड और ही विल कॉल बैक। सो उस हिसाब से हम्म मुझे लगता था कि नहीं ठीक है, सब सही चल रहा है, नहीं हैव टेकन ए कॉशियस डिसीजन एंड देयर इज नथिंग टू लूज, ठीक है, कैरियर वाइज थोड़ा पीछे हो जाएंगे, नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, कुछ ना कुछ देखेंगे। हम्म, गुड माइंडसेट। लेट्स टॉक अबाउट योर ऑप्शनल की सोशियोलॉजी क्यों लिया आपने? सर सोशियोलॉजी का तो बहुत फनी स्टोरी है सर। मेरे को हम्म कुछ पता नहीं था कि सोशियोलॉजी कैसे क्यों लेना है, तो मैंने बताया ना सर, मेरा एक भाई जैसा ही है जिसने बोला कि भैया आ जाइए। सो ही वॉज देयर इन दिल्ली, वो 1 1.5 साल पहले से ही वॉज प्रिपेयरिंग, सो वो फॉर आराम से यूपीएससी। पहले। हाँ यूपीएससी सर, यूपीएससी, ही इज फ्रॉम एनआईटी राउरकेला, आई मेट हिम इन कोटा, सो वो तब से हाँ। हमारी रिलेशन है। सो वो हम्म है एंड सो उसने पहले जीएस किया आराम आराम से, फिर अब सोशलॉजी जब करने का बारी आया तो मैं बोला भाई मुझे भी करना है ऑप्शनल का, तो वो बोला कि भैया मैं ना सारा रिसर्च कर लिया हूँ, मुझे लगता है कि सोशलॉजी सही रहेगा। हम्म तो मैं बोला कि ठीक है भाई, तो बोला कि ठीक है मैं जाता हूँ, यहाँ पे 2 3 लोग हैं जो अच्छे पढ़ा रहे हैं, सो मैं पता करता हूँ यहाँ पे, नो ही तो एग्जैक्ट व्हाट ही टोल्ड, थोड़ा जायजा लेते हैं कि कौन अच्छा। देन ही वेंट एंड ही फाउंड कि सर भैया मुझे प्रणय सर का सबसे अच्छा लगा। मैं बोला भाई, एंड ही वाज आल्सो कि मैं अभी ऑनलाइन ही लूंगा, ऑल्दो ही यूज्ड टू स्टे इन पटेल नगर, कि मैं भी लेकिन अच्छा। ऑनलाइन ही लूंगा। मैं बोला उसको कि शुभम, तुमको जहां तुमको सही लग रहा है बताना, मुझे कब पेमेंट करना है मैं कर दूंगा, हम्म मेरे को हम्म इससे ज्यादा ऑप्शनल डिसाइड नहीं करना है। तो बस मैंने कर लिया सर, ऑप्शनल डिसाइड हो गया मेरा, कि मतलब बेस्ड ऑन हिज फीडबैक एंड आउटबुक की दिस इज इट। अरे, एंड फिर दैट्स अ वेरी फ्रैंकली कैजुअल अप्रोच टू सिलेक्टिंग योर ऑप्शनल। हाँ सर, मतलब इट वर्कड आउट, बट फिर से पढ़ने में अच्छा लगने लगा ना। फिर वही हाँ। लगता, मैं जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि मतलब आपके हाउ वाज योर इंटरेक्शन विद प्रणय सर, हाउ इज हिज टीचिंग, तो बात था कि कभी वैसा लगा ही नहीं कि हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। जैसे हम्म आप वो भी कि बहुत लोग, मैंने आई हैव हर्ड अबाउट टीचर्स की जो क्वेश्चन आंसर अप्रोच में पढ़ाते हैं, आप समझ के जी। ये चैप्टर आ गया, ये क्वेश्चन आ गया, ये आ गया, तो वैसे हिसाब से तो वो चीज लगा कि एकदम कैंडिडली चल रहा है, और सोसाइटी वैसा है, बीइंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड, बिहार, बंगाल, बहुत सारे स्टेट्स में रहने के बाद लगता है अरे समाज तो हम लोग जानते हैं, हम्म उसमें मतलब आप जो बोल रहे थे, आप बहुत बार बोलते भी थे ना कि इसमें क्या ही मैं तुमको नया पढ़ा रहा हूँ, कि जी। तुम लोग को लगता है कि ऐसा है वैसा है, देन वो फिर मुझे बहुत ज्यादा हेल्प किया, फिर मुझे अच्छा लगने लगा सोशियोलॉजी। और फिर मैंने कभी ऐसा भी नहीं सोचा कि जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि सब्जेक्ट चेंज कर लेना है या ये करना है, बट मेरे को ये था कि एक बार जो ले लिया, आई स्टैंड बाय दिस डिसीजन, तो इसमें वो हम्म चीज चेंजेस की वो नहीं है कि नहीं छोड़ देंगे या वो कर देंगे। कुछ आपने सोशियोलॉजी में एनीथिंग यू फेल्ट वाज समवॉट शॉकिंग कि यार अच्छा ऐसा भी होता है, समवॉट ऑफ सर अ रेवलेशन की ऐसा नहीं सोचा था, ये तो ऐसा निकला? सर बहुत कुछ सर, मैं हाँ, मेरे दोस्तों कोई को उदाहरण दीजिए ना। फेमसली बोलते रहता हूँ, फैमिली वाला जो चैप्टर है उसमें जो 2 स्टेटमेंट्स हैं डेविड कूपर और आरडी लैंग के, द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली एंड द डेथ ऑफ फैमिली, जी। ये सब सर आदमी, मैं तो ये कोई कौन सोचता है सर ये वाले एंगल से समझ रहे हाँ। हैं, तो वो एक चीज था। बाकी स्पेशली थर्ड जेंडर वाला जो एनालिसिस था, वो उनका जो इरोटिक पिरामिड, जो उनका जो वो चीज था, मगर बताओ ऐसे सोचने के लिए भी आपको वो चाहिए, जूडिथ बटलर का जो अपना एनालिसिस है, तो ये सब चीजें जी। काफी वैसी थी कि ये नहीं पता था। बाकी जैसे फैमिली का फंक्शंस बताइएगा तो हम लोग को ब्रॉडली पता है, बट जैसे जीबी मॉडक ने उसको वो कर दिया है कि हम्म कैटेगराइज कर दिया कि ये स्कॉलरली ऐसे 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 चीजें होती है, ये हो गया। हम्म इंडियन सिस्टम में, इंडियन वाले में भी जैसे वो शिफ्ट होता है, मतलब इंडोलॉजी जहां से इंट्रोड्यूस होता है, तो जी। कैसे वो मतलब हम उस समय के, मैं इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि वेस्टर्न डोमिनेंस को कैसे बीट करके, चैलेंज करके एक नए चीज को लाना, व्हेन यू आर हम्म अंडर कॉलोनी रूल, या जस्ट हम्म यू आर अभी उठ रहे हो आप उस चीज से, तो वो सब जी। चीजें काफी मुझे वो लगती है फैसिनेटिंग इस हिसाब से। और फैमिली वाला तो मैं वो चीज मैं भूल नहीं पाता हूँ सर, द डेथ ऑफ अ फैमिली एंड द पॉलिटिक्स ऑफ फैमिली। मैं अपनी बहन को, मम्मी को, जिसको मैं उसको मैं एक एक लाइन में समझाते रहता हूँ, बड़े हम हाँ। लोगों को कि ऐसा है फैमिली। ठीक है। ये बताओ कि व्हाट इज द मोस्ट ऑड और वियर्डेस्ट काइंड ऑफ वरी जो बहुत सारे यूपीएससी अननेसेसरली आपके हिसाब से पालते हैं? सर एक तो मुझे वो लगता है ना कि
अननेसेसरी जो मुझे लगता है कि प्लान हमेशा कस्टमाइज्ड होना चाहिए, जो मुझे लगता है जी। कि आप अपना देखिए। जैसे अब मुझे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर आज आके बोल दे कि आज आप देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स का फॉर्म एग्जाम, फिर से वही एग्जांपल दूंगा, प्रीलिम्स का प्रिपरेशन किसको कब स्टार्ट करना है और कब स्विच करना है, हम्म। ये कोई इंडिविजुअल, बहुत कम लोग हैं जो डिसाइड कर रहे हैं। बेसिकली ये इंडस्ट्री डिसाइड कर रही है सबके लिए। सही अब बात हो है। सकता है जैसे मैंने पहला प्रीलिम्स, मैंने इफ आई क्रैक फर्स्ट प्रीलिम्स, मैंने जनवरी से पढ़ना स्टार्ट किया था, तो हम्म। नेक्स्ट ईयर आई नो कि हैव फ्यूअर थिंग्स टू स्टडी, तो मैंने फरवरी मिड से स्टार्ट किया कि 1.5 महीने और कुछ कर लेते हैं। एथिक्स में हम्म। कम नंबर, एथिक्स में मुझे लगा अच्छा नहीं, कुछ और कर लेते हैं। तो ये हम्म। मुझे लगता है कि अननेसेसरी, जैसे कुछ जैसे टेस्ट सीरीज का मैंने आपको बताया, मैं जी। भले ही मैं टेस्ट भी दूं, फिर भी मैं एक चीज को मानता हूँ कि सब कोई बोलता है टेस्ट देना चाहिए, टेस्ट देना चाहिए, बट मुझे पहले लगता है कि कंटेंट सिर्फ स्ट्रांग रहे हम्म। तो फिर उसको आप लिख लीजिएगा 7 मिनट में। कंटेंट ही नहीं, लोग क्या कर रहे हैं, मतलब एक बार कंटेंट आपको स्ट्रांग कर लेना पड़ेगा, फिर आपको टेस्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा, ताकि जी। फिर आप लिखिए, फिर आपको जितना लिखना है लिखिए, कोई उसमें आपको बाधाएं नहीं है उस हिसाब से। और एक और जो हम्म। बहुत नेचुरल एंजाइटी मुझे लगता है कि जहां अगेन, जैसे लोग बोलते हैं कि आईआईटी से हो तो हो जाएगा, सर आईआईटी से होने से यूपीएससी पे चांसेस नहीं बढ़ रहे हैं, हम्म। बट जो जॉब सिक्योरिटी की चीज है वो बिल्कुल। आईआईटियंस को साइकोलॉजिकली बूस्ट बहुत दे दे रहा है। कि सही मुझे बात पता है। है कि भाई मैं कहीं भी जाऊंगा आज इतने साल बाद भी, तो लाख रुपए का तो जॉब मेरा लगेगा कहीं ना कहीं। सही बात है। तो एंड दैट्स अ वहां ह्यूज मेंटल सिक्योरिटी बहुत दैट यू ज्यादा गेट। सर, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। एग्जाम में कुछ फायदा नहीं हो रहा है, लोग बोलते सीसेट हम्म। क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, अरे बिकॉज बिकॉज इट्स सेम, हम लोग फास्ट मैथ नहीं करते हैं। आईआईटीज में हम्म। हमारा मैथ जो होता है जेई एडवांस वाला, ये वो अलग मैथ होता है, डिस्क्रिप्टिव होता है, वो सॉल्व करना पड़ता है, ये फास्ट मैथ्स है। तो हम्म। वहां एडवांटेज, लिखने का तो आप छोड़ ही दीजिए, इंजीनियरिंग में मैं क्या ही बोलूं कि उसमें हम्म। तो बाइनरी में लिखते हैं, या तो इधर या तो उधर, हाँ ना, टिफ प्रोफेसर भी नंबर दे देते हैं कि चल रहा है अलग ही उधर वो सब। तो उसमें हम्म। फायदा नहीं हो रहा है, बट उसका साइकोलॉजिकली बूस्ट में बहुत फायदा होता है, जो कि दैट इज बाकी लोगों को बहुत ज्यादा एंग्जाइटी का वो कारण बन जाता है। हाँ, अदरवाइज ना जो रन ऑन दी मिल एजुकेशनल बैकग्राउंड से होगा वो व्यक्ति को आधे टाइम तो ये चिंता खाएगी कि अगर जी यहाँ नहीं सर, हुआ तो मेरा जीवन में क्या होगा। जी 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 सर। और इसी पे मैं एक लास्ट लाइन ये भी ऐड करूंगा कि सर, जैसे मैं अपने आप को, ठीक है ऑलवेज सर ऐसा हो सकता है कि मैं कंपेयर करूंगा मेरे ऐसे दोस्त से जो बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, जो बहुत पैसे है कमा रहा है, बट सर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो आई थिंक आई एम वेरी प्रिविलेज्ड। मैं बिल्कुल। 2 साल 10 महीने जॉब छोड़ के, हो ठीक है, आई सेव्ड माई मनी, आई प्लान्ड इट, दैट इज ऑल डिफरेंट स्टोरी, बट मैं प्रिपरेशन हम्म। कर पाया। मेरे पास ना जी। मेरे पेरेंट्स डिपेंडेंट्स हैं, ना मेरे सिस्टर डिपेंडेंट है, ना घर पे कुछ मुझे करना है किसी के लिए। तो आज जी। के जमाने में मैं बहुत प्रिविलेज मानता हूँ अपने आप को इस हिसाब से कि गुड यू आप शांति से। रिकॉग्नाइज योर प्रिविलेज विशाल बेटे। आपका यस सर। इंटरनेट थोड़ा अभी कच्चा है क्या? क्यों सर? Like, मतलब आर यू यूजिंग मोबाइल डेटा या वाईफाई? नो क्योंकि नो नो थोड़ा सा ना सर, रुक रुक। आई एम यूजिंग नेट ओनली, मे बी अच्छा, आपका कुछ ठीक चल रहा है। हाँ सर, मेरा तो मतलब मैं प्रॉपर और इसके नीचे बैठा हूँ, राउटर के नीचे। अच्छा, ठीक है। विशाल, कोई ऐसी सोर्सेज या बुक्स जो बहुत पॉपुलर हैं बट आपने नहीं रेफर की, आपको लगा थोड़ा ओवररेटेड है या शायद इतनी आवश्यकता नहीं है इन द होल एग्जामिनेशन प्रिपरेशन? सर या फिर आपने सारी स्टैंडर्ड किताबें लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये वो सारी करी? सर मैंने मेरे मतलब वो भी बहुत मेरे लिमिटेड थे। जैसे फॉर हाँ। एग्जांपल पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत रहता था, जी। स्पेक्ट्रम रहता था मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, हम्म। और आपका हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी है, हम्म। और ज्योग्राफी के लिए बस एनसीईआरटी है, हम्म। इकोनॉमिक्स के लिए विवेक सिंह सर की बुक आती है, बस मैंने वो बुक पढ़ा हुआ है। तो मेरी ये जी। 5 6 जो मेरे मेन बुक्स हैं ये मेरे फिक्स हैं। हम्म। इसके अलावा जो मैपिंग इन्वायरमेंट वगैरह वगैरह करना है वो मैं कहीं ना कहीं से उठा के कर लेता हूँ। जैसे और सोशियोलॉजी हम्म। में भी मैंने अभी तक कोई वैसा बुक पढ़ा नहीं है जी। कि जैसे लोग पढ़ते हैं या बहुत स्टडी करते हैं, बट वो आपका वो क्लास नोट्स का जो फाउंडेशन था वही मेरे लिए अभी तक एक्ट किया है जो हम्म। करने के लिए। सो ऐसा मैंने कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू नहीं किया है, बट हाँ मैंने बहुत ज्यादा, जैसे लोग जीसी लियोंग भी पढ़ लिए ज्योग्राफी हम्म। के लिए, या कुछ जी। कुछ और रेफर कर लिए, मैं वो सब मैंने नहीं किया। या हिस्ट्री के लिए लोग बिपिन चंद्रा भी पढ़ लिए, ये मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ा हुआ हूँ, तो मैंने वो भी बहुत बेसिक रखा हुआ था उस हिसाब से। ठीक है। अगर आपको जो बाकी एस्पिरेंट्स की कम्युनिटी है उनको अ, 3 गुर बताने हो एग्जाम को क्लियर करने के लिए, हम्म। वो बताओ बेटे, आपकी तरफ से क्या होंगे? सर सबसे पहला रहेगा कस्टमाइज्ड प्लानिंग फॉर योर एंटायर जर्नी, दैट हम्म। इंक्लूड्स व्हेन टू एंटर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन टू एग्जिट। वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चीज में। सेकंड, मतलब एक प्लान भी होना चाहिए इंसान के पास।
सर मुझे जैसे मैं मेरा पता था कि फ्रॉम दी स्टार्ट? हाँ 2 अटेम्प्ट्स मैंने दे दिए, ये मेरा तीसरा था 2026। आई फिल द फॉर्म। अगर मेरा ये नहीं होता तो मैं नहीं आगे ये करता, क्योंकि 4 साल हो जाते। तो मैं हम्म। इस और हैविंग माई एज इज ऑल्सो गोइंग अप, तो मैं नहीं ये करता। और हम्म। दूसरा, मैं जैसे जो मेरे भाई बहन या जो मेरे अपने घर के लोग जो मुझे जेई प्रिपरेशन करते हैं वो भी मेरे से पूछते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, तो मैं उनको एक ही लाइन बोलता था कि डेली का पढ़ाई डेली करना है। तो ये सही बात है। सुनने में बहुत वैसा लगता है, क्लीशे लाइन लगता है कि अरे ये क्या आप बोल के चले गए। और फिर सबको हम्म। 1 साल बाद रियलाइज होता है कि ये कितना ही बड़ा चीज है। मतलब ऑल हम्म। दो कि उस दिन ऐसा हुआ कि आपका पढ़ाई नहीं हो पाएगा, तो मेरे को मैं उस दिन भी 4 घंटे 5 घंटे बैठ जाता था कि ठीक है आज हम्म। 10 घंटे ना हो तो लेकिन 4 घंटे 5 घंटे रहे। एंड वही है, कस्टमाइज प्लानिंग अपना बनाइए, डेली का पढ़ाई डेली कीजिए। और जो मेरे को अब करना बाकी है वो मैं बोलूंगा, पीवाई पीवाई क्यूज और टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लिखिए, क्योंकि मुझे यस। लगता है कि वो करना चाहिए यस। ऑब्वियसली। विशाल, इस एग्जाम में डू यू सी अ रोल ऑफ लक, या इट इज ऑल वंस एफर्ट? नहीं नहीं सर, लक तो इसके पहले आई वाज आल्सो दैट गाय की लक का देख लेंगे, मेहनत से हम्म। बदल देंगे लक। आई विल गिव यू अ हम्म। वेरी स्मॉल एग्जांपल सर। पहला प्रीलिम्स में दिल्ली में दे रहा था, जनकपुरी वेस्ट के पास सेंटर था मेरा। तो मैं जी। थोड़ा पहले पहुंच गया, क्योंकि मेरे साथ जो लड़का था उसका रोहिणी में था, तो बोला चलिए भैया दोनों निकलते हैं साथ में। तो मेरे पास सिर्फ लक्ष्मीकांत की एक किताब थी जो मैं ले गया था कि देख लेंगे। मैं अंदर गया, तो मैं बाहर ऐसे बैठ के आधे घंटे टाइम थी तो मैं देख रहा था लक्ष्मीकांत का चैप्टर 3 है उसमें, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वगैरह वगैरह है। मैं उसी वही बस थोड़ा थोड़ा पलट पलट के देख रहा था। मैं अंदर जाता हूँ, मेरा पेपर आता है। आप सोचिए, ये छोटी छोटी बातें मैं सोचता हूँ बैठ के। आप बैठते हो ऐसी पोजीशन पे सीट में जहां की आपका पेपर आता है कोड डी। हम्म। और कोड डी के आप पहला पेज खोलते हो, आपके पहले पेज में आपका सेक्शन स्टार्ट होता है पॉलिटी से। और उस 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन आपने अभी रिवाइज करके आए हुए हो। हम्म। वो और एक क्वेश्चन आप और कर लेते हो। तो 6 में से 5 क्वेश्चन आपको पता है कि 10 नंबर हैं, ये तो नहीं जा रहे। वहां से बहुत बूस्ट ऑफ वो कॉन्फिडेंस मिला। सही तो बात ये है। चीज तो मैं मानता हूँ कि सर लक अपना रोल प्ले करता है। इवन मतलब आपका कौन सा बोर्ड है, आपके पहले कौन जाता है कौन नहीं जाता है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो सीन इन कॉर्पोरेट ऑल्सो। आई हैव ऑल्सो टेकन इंटरव्यूज बीइंग फ्रॉम द अदर साइड, जहाँ यस। रिक्रूटमेंट के लिए। तो वहां भी वो चीज फर्क पड़ता है कि पहले कौन आया, आप बीच में हो, फिर आपके बाद कौन आ रहा है। भले चाहे सही कोई बात है। कितना भी ऑब्जेक्टिव प्रोसेस बना ले सर, सब्जेक्टिविटी आती है। ये तो कोई मतलब मुझे नहीं लगता है, विथ माई लिमिटेड नॉलेज आई कैन डिनाई दिस। विशाल, लास्ट थिंग मेरे को ये बताओ कि व्हाट इज द रोल ऑफ योर फैमिली मेंबर्स इन योर प्रिपरेशन जर्नी? आपके पेरेंट्स का या बाकी परिवारजनों का क्या क्या योगदान रहा है? सर चाहे वो इमोशनल सपोर्ट हो, अगर कोई एकेडमिक इनपुट मिला है उसका भी बताएं। नहीं सर, एकेडमिक इनपुट तो मतलब ऐसे देखिए, उतना कोई मेरे घर में वेल वर्स्ड नहीं है। तो हम्म। उनको मैं कभी मतलब मैंने बैठ के अभी तक उनको ये भी नहीं पता होगा कि मेरे कौन से सब्जेक्ट्स थे और क्या मैंने लिया है। ये सब भी उनको अच्छा। अभी आया है। आइडिया आई एम श्योर नहीं है किसी को भी आइडिया कैसे क्या होता है वो सब। बट अब वही सर कि वो एक वो था मतलब जैसे मेरे पापा का उसमें बहुत बड़ा मैं ये मानूंगा, मेरे अंकल जी का अंकल का मानूंगा कि उनको ये था कि पढ़ाना है। अंकल मतलब मतलब आपके चाचा जी? हाँ मेरे अपने अंकल, हम वी स्टे इन अ जॉइंट फैमिली अभी भी। सो हम्म। वैसा है। तो उन लोगों को ये था कि पढ़ाना है, कि मतलब कुछ भी हो जाए, कि एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट किया उन लोगों ने, मतलब उस बैकग्राउंड में और उस सराउंडिंग्स में सर्कमस्टांसेस में एजुकेशन पे हम्म। इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी बिग थिंग। कि मतलब लोग लगता है जैसे छोटी छोटी चीजें सर, केंद्रीय विद्यालय मालदा में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, मैं वाज देयर इन हम्म। मालदा नाउ। सो नया इंग्लिश मीडियम स्कूल खुला। तो मैं हम्म। ऑब्वियसली मेरे को तो कोई आइडिया नहीं, आई वाज 4-5 साल का रहा हूँ मैं, बट मेरे फादर वो हैज एन इंक्लिनेशन कि नहीं नहीं वहां छोड़ के, वहाँ ऑल दो फीस कम है, रेलवेज वाले लोग जा रहे हैं, बट तुम यहाँ पढ़ लो। तो ये हाँ। स्टार्टिंग वैसा था। फिर बाकी तो सर सब कोई मेंबर्स रहते ही हैं, मेरी बहन बहन लोग भी मेरी एकदम छोटी हैं दोनों मेरे से। बट वो लोग भी काफी वैसा सपोर्ट रहता। टेलीग्राम पे हम लोग का एक छोटा सा ग्रुप है 3 लोगों का, तो हम लोग आपस में बातचीत करते रहते हैं ये वो, तो वो लोग भी काफी कॉन्फिडेंस दे देते हैं। तो वैसे हम्म। चलते रहता है, सबका अपना अपना रोल रहा है। और ब्लेसिंग्स सर, ब्लेसिंग्स तो मतलब मैं बोला, मैं इन चीजों में बहुत लकी हूँ, मतलब बहुत ज्यादा टचवुड। मैं चाहता हूँ ये रहे, बाकी कुछ भी हो ना हो लाइफ में, लोग जो हम्म। हैं साथ में, ब्लेसिंग्स ये रहे हमेशा बस। चलो, वंडरफुल नोइंग दैट। एंड केवल आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को हार्टीएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन विशाल बेटे। जी थैंक हाँ, यू सो मच सर। आई एम थैंक यू सो। एक्सट्रीमली हैप्पी कि आपकी नैया पार लगी। जी है सर, ना? जी सर। एंड वी विल सिट विद योर सोशियोलॉजी में जो भी हाँ गैप्स पॉसिबली हम कवर कर सकते हैं, अगर 20-30 नंबर कहीं भी बढ़ा सकते हैं। है जरूर ना? सर, जरूर सर। वेन एवर यू सिट डिसाइड टू सिट फॉर द एग्जाम। यस और सर। कभी दिल्ली आने का भी प्लान है क्या?
इन द नहीं नियर सर, फ्यूचर? अभी तो नहीं है प्लान, बट अगर मैं देखूंगा वापस तो मंथ मंथ एंड या अर्ली मंथ स्टार्टिंग में अगर आऊंगा तो मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके हाँ, आपके ऑफिस से कोऑर्डिनेट करके मैं जरूर आई विल बी मिलूंगा वेरी आपसे। हैप्पी टू मीट यू मेरे सर बेटे। आई एम प्रिविलेज सर, आई एम प्रिविलेज्ड टू मीट यू। गॉड ब्लेस यू मेरे बेटे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ठीक। ब्लेसिंग्स। थैंक यू सर।